زمان پارک کے باہر سے گزرنے والے پولیس اہلکاروں پر پی ٹی آئی کارکنان کا تشدد۔ پی ٹی آئی کارکنان کا موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار پر تشدد۔ موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار زمان پارک کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی پی ٹی آئی کارکنوں نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ زمان پارک کے باہر سے گزرنے والے پولیس اہلکاروں پر پی ٹی آئی کارکنان کا تشدد۔ پی ٹی آئی کارکنان کا موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار پر تشدد۔ موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار زمان پارک کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی پی ٹی آئی کارکنان نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ پولیس نے آج لاہور میں نو گو ایریا کلیئر کر دیا۔ زمان پارک میں تلاشی کے دوران اسلحہ اور پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں عمران خان کے گھر کے رہائشی حصے کا سرچ وارنٹ ہونے کے باوجود تلاشی نہیں لی گئی۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک جیل سے بچو تحریک بن چکی۔ یہ شخص ملک میں فتنہ اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے۔ صبح پولیس نے نو گو ایریا کو کلیئر کیا اور عمران خان صاحب کے گھر کی جو ہے وہ سرچ کی آؤٹر پورشن کی، جو ان کا رہائشی پورشن ہے جس میں ان کی غالباً اہلیہ محترمہ جو ہے وہ موجود تھی، اس ایریا کے سرچ وارنٹ ہونے کے باوجود پولیس داخل نہیں ہوئی۔ وہاں سے کلاشنکوف برآمد ہوئی ہیں، وہاں سے گلیلیں برآمد ہوئی ہیں، وہاں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ ریاست کی ریٹ قائم رکھنا حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی گفتگو کہتی ہیں کہ عمران خان قومی مفادات سے کھیلنے، سازشیں کرنے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی سے نہیں ڈرتا، یہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کی زمان پارک میں آپریشن کی مذمت۔ کہا کہ پنجاب پولیس نے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، توہین عدالت کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز گروپ مذاکرات کی کوشش کو خراب کر رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ڈی آئی جی سیکیورٹی دونوں کو میں نے تفصیلی میسیجز کیے اور میں نے کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتا دوں کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے جج طارق سلیم شیخ صاحب کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کریں گے اگر آپ اس طرح سے جائیں گے۔ دونوں نے میرے جو میرا پیغام تھا اس کو انہوں نے اکنالج کیا اور دونوں نے کہا کہ جی ہم آئی جی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپریشن ہوا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے گیٹ توڑا گیا۔ رمضان المبارک کی آمد یوٹیلیٹی سٹورز اشیاء ضروریہ سے خالی پڑے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 2 ہفتوں سے سستا آٹا، 3 ماہ سے سبسڈائزڈ آئل اور گھی غائب ہے۔ دالیں اور بیسن بھی برائے نام ہی موجود ہے۔ صارفین مایوس خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ رمضان المبارک کی آمد میں 1 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا، مگر شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کا اسٹاک نہ ہونے کے برابر ہے۔ 3 ماہ سے سستا گھی اور آئل اور 2 ہفتوں سے سستا آٹا ناپید ہے۔ بیوہ ضعیف خاتون نے کہا کہ کمانے والا کوئی نہیں، راشن لینا نہایت مشکل ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چکر لگا کر تھک گئی ہوں۔ آٹا لینا آیا تھے، آٹا نہیں مل رہا، نہ گھی نہ چینی، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ سستا کو رمضان آ رہا، غریب بندے ہیں، بیوہ عورت لوگوں نے گھر کام کر کے تے وقت پاس کر رہے ہیں۔ مکان کرائے تے کیا کریے، اس مہنگائی کرائے دئیے، بل دئیے کہ راشن پورے کریے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز پر بیسن، دالیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ماہ مبارک کے لیے کھجوروں کا اسٹاک بھی نہیں پہنچ سکا۔ صارفین نے کہا کہ تاحال واضح نہیں کہ مفت آٹا کہاں سے ملے گا۔ شہریوں نے کہا کہ وفاق یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت فوری اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ کم آمدن والے صارفین خریداری کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ رمضان پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز اور چیکنگ پوائنٹس پر مفت آٹے کی تقسیم شروع۔ 1,58,00,000 گھرانوں کو آٹے کی مفت فراہمی کی جائے گی۔ محکمہ خوراک نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو آٹے کی تقسیم کے متعلق SOPs جاری کر دیے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق غربت کی لکیر سے نیچے 1,58,00,000 سے زائد گھرانوں میں آٹے کی مفت فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ ماہ رمضان میں 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے فراہم کیے جائیں گے۔ 6,78,000 ٹن آٹا غریب عوام میں مفت تقسیم کیا جائے گا۔ ریٹیلرز پرافٹ، ٹرانسپورٹیشن سمیت دیگر اخراجات فلور مل برداشت کرے گی۔ فلور ملز ٹرکنگ پوائنٹ پر آٹے کی تقسیم کے لیے عملہ فراہم کریں گی۔ ضلعی انتظامیہ کے نمائندہ افسران مانیٹرنگ کی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ڈائریکٹر فوڈ آٹے کے معیار کو یقینی بنائیں گے۔
CBD मेन बुलेवर्ड कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबा कलमा अंडरपास की ड्रेन मुकम्मल। CBD जाने वाली बैरल की खुदाई आर पार मशीनरी गुजार दी गई है। कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर पूरी मशीनरी के साथ दिन रात 3 शिफ्टों में काम जारी है। अलीजेब रोड की जानिब अंडरपास की बैरल की छत डाल दी गई है। अंडरपास की रेटिंग वॉल्स की तामीर का काम जारी है। अंडरपास के ऊपर दोनों अतराफ मेन रोड की बहाली का काम जारी है। निगरान वज़ीर आला ने कलमा चौक अंडरपास की तोसी के हवाले से 23 मार्च की तारीख दे रखी है। अलीजेब की बैरल और CBD की जानिब बैरल बाद में मुकम्मल होगी। अंडरपास पर ट्रैफिक की रवानी के सबब तामीराती काम रवानी से करने में कंट्रैक्टर्स को मुश्किलात का सामना है। मदीना फाउंडेशन के ताउन से हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तोसी का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला ऑफिस में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्कद हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चेयरमैन दाता दरबार मजहबी अमूर कमेटी विफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुआहदे के मुताबिक मदीना फाउंडेशन हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गिर्द बरामदो गुलाम गर्दिश की तोसी करेगी, जबकि मनसूबे पर तकरीबन 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मनसूबे की तकमील से गुलाम गर्दिश और इन बरामदों में ज़ायरीन की गुंजाइश 3000 से बढ़कर 5000 हो जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे को हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से कबल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि लंगर खाने को भी आलमी म्यार का बनाया जाए। विफाकी वज़ीर इसाक डार ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तोसी के मुआहदे की सआदत हासिल हुई। सेक्रेटरी औकाफ ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार को मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर, मदीना फाउंडेशन के मियाँ रशीद, असलम तरीन, खतीब दाता दरबार मस्जिद, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोई भी सरकारी स्कूल अपने पेपर खुद चेक नहीं करेगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पेपर मार्किंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल में सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। इम्तिहानात का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने पेपर मार्किंग का शेड्यूल जारी कर दिया। कोई भी स्कूल अपने पेपर्स खुद चेक नहीं करेगा। एक स्कूल अपने पेपर्स दूसरे स्कूल से चेक करवाएगा। इस हवाले से तमाम स्कूलों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अहकामात पर अमल करना तमाम स्कूल सरबराहान के लिए लाजमी होगा। कमिश्नर लाहौर से ऑफिस वापस ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर लाहौर को शहर में कहीं और दफ्तर तलाश करने की हदायत जारी कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा से कमिश्नर ऑफिस वापस ले लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमिश्नर लाहौर से ऑफिस वापस लिया है। कमिश्नर ऑफिस अब सेक्रेटरीट के महकमे को अलॉट किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर लाहौर को शहर में कहीं और दफ्तर तलाश करने की हिदायत कर दी है। नया तामीर होने वाला कमिश्नर ऑफिस सेक्रेटरीट मैनेजमेंट के हवाले कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। याद रहे कि कमिश्नर ऑफिस ज़ेर तामीर होने की वजह से आर्जी तौर पर जेल रोड पर कायम किया गया है, जहाँ कमिश्नर लाहौर अपने अमूर निपटाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलिक मुदस्सर अली खोखर और रुकन कौमी असम्बली सैयद जावेद हुसैन शाह की अलग अलग मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलिक मुदस्सर अली खोखर की मुलाकात के दौरान मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने मीडिया इंडस्ट्री की तरवीज और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मलिक मुदस्सर के दादा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली सैयद जावेद हुसैन शाह की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि सैयद जावेद हुसैन शाह ने अपने हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ शोबों, TB लैब, ड्रग टेस्टिंग लैब्स और सर्वेलेंस सेंटर का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रूरल हेल्थ एम्बुलेंस सर्विस के तहत 98 एम्बुलेंस की चाबियाँ सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर को दी। वज़ीर आला ने 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें 24/7 बुनियादी मराकज़े सेहत के सपुर्द कर दी, जबकि 300 अल्ट्रासाउंड मशीनों के ज़रिए रूरल हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड की मुफ्त सहूलत फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 20 मार्च से पंजाब भर में महकमे हफ्ते सेहत मनाने का भी ऐलान किया है। हफ्ते सेहत के दौरान डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, देही और बुनियादी मराकज़े सेहत में आवाम की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि मुफ्त तिबी मुआयने के लिए खसूसी कैंपस लगाए जाएंगे। बाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट और हेल्थ रेडियो स्टेशन का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम और पंजाब भर के 2000 बुनियादी मराकज़े सेहत के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि महकमे सेहत की 5 DTL ने ISO सर्टिफाइड और 4 WHO प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है।
मुहाफिज टाउन इनोवेटिव स्टेप स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात सदर मुस्लिम नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर की खुसूसी शिरकत, तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। कैनाल बैंक रोड पर मुहाफिज टाउन इनोवेटिव स्टेप स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने खुसूसी शिरकत की। सीनियर लीगी रहनुमा राजा जवाद अशरफ, सदर मुहाफिज टाउन अशरफ गुज्जर, मोहम्मद सवेद अकबर, कर्नल अब्दुल गफ्फार, काशिफ खरड़ समेत दीगर भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद ज़रूरी है, इससे बच्चों में मज़ीद आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लाहौर बिजनेस स्कूल के ज़ेर एहतमाम चौथी बैनुल-अक़वामी बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से बिजनेस माहिरीन ने शिरकत की। तलबा को बिजनेस के जदीद तरीकों, मुस्तकबिल में बिजनेस को दरपेश मसाइल और हल से मुताल्लिक आगाह किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लाहौर बिजनेस स्कूल के ज़ेर एहतमाम चौथी बैनुल-अक़वामी बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर अशरफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, डीन डॉक्टर राबिया रऊफ, HOD डॉक्टर खुर्रम शहजाद, डॉक्टर फारूक अनवर बाजवा भी शरीक हुए। लाहौर बिजनेस स्कूल डॉक्टर राबिया रऊफ का कहना था, कोशिश थी तलबा को बिजनेस इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल की समझ बूझ मिले। इसके अंदर हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को, जो कि हमारे एकेडेमिया के लोगों के साथ बैठेंगे, रिसर्चर्स के साथ, रिसर्चर्स, एकेडेमिया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिल के सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कायर रेनॉल्ड्स ने कहा, लाहौर बिजनेस स्कूल के तुलबा बासलाहियत हैं, दुनिया की बिजनेस इंडस्ट्री में नाम बना सकते हैं। The titles of some of the papers that will be in the parallel sessions, and I'm very excited about the topics that I see them researching, and I also have some students from Pakistan who I teach in the United Kingdom. HOD लाहौर बिजनेस स्कूल डॉक्टर खुर्रम शहजाद की कहना था, दुनिया भर से बिजनेस माहिरीन बुलाने का मकसद लाहौर बिजनेस स्कूल के तुलबा को आला तरीन तालीम से आरास्ता करना था। हम इंटरनेशनल जितनी कम्युनिटीज़ हैं, दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो उस्ताद इकराम हैं, उनको पाकिस्तान में बुलवाएं, हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन करें। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बिजनेस माहिरीन के पैनल ने अपने तजुर्बात बयान किए। तुलबा और तालिबात ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भरपूर सराहा। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ साजिद अली, सिटी 42। बहरिया टाउन में जश्न बहारा की मुनासबत से घरों की तज़ीन व आराइश का मुकाबला। घरों को खूबसूरती से सजाने वालों में इनामात तकसीम करने के लिए रोज़ गार्डन बहरिया टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब तकसीम इनामात में बहरिया टाउन के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बहरिया टाउन जाहिद इलियास, सीनियर जनरल मैनेजर बहरिया टाउन उमर फारूक, डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल रिटायर्ड अली हसन, सीनियर सिटीजन मिसेज कामरान ने शिरकत की। सीनियर जनरल मैनेजर उमर फारूक ने कहा, जश्न बहारा बहरिया टाउन की खूबसूरती बढ़ाने की जानिब बड़ा इकदाम है। बहरिया टाउन की आराइश का सफर जारी रखेंगे। हर साल जश्न बहारा की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्कद करता है और ये भी इस साल हमने प्रोग्राम किया। इसमें तमाम कैटेगरीज, जिसमें रेजिडेंशल, कमर्शियल और मुख्तलिफ किस्म के बागात, उनकी फूलों के साथ नुमाइश की गई और उनको हमने इनामात दिए। तकरीब रिहायशियों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में इनामात दिए गए। 4 कनाल, 2 कनाल, 1 कनाल, 10 मरला, कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग मालिकान की मेहनत को सराहा गया। सीनियर सिटीजन मिसेज कामरान ने कहा, जश्न बहारा के मौका पर तकरीब तकसीम इनामात के इनेकाद काबिल तहसीन है। जहाँ तक हो सकता है बहरिया हमारी सिक्योरिटी के लिए, बहरिया हमारे तमाम चीज़ें जो कही गई हैं वो उनका ख्याल रखते हैं और हम चाहेंगे जो आपने अभी हमारे साथ वादे किए हैं आप ज़रूर उनको पूरा करेंगे। तकरीब के शुरुका में मौजूद तमाम अफराद ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो भी आइंदा जश्न बहारा में अपने घरों को सजाएंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ साजिद अली, सिटी 42 लाहौर। UMT का 24वां कॉन्वोकेशन, कुल 1389 फारिग तहसील तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। वजीर बल्दियात इब्राहिम मुराद, सदर UMT, डायरेक्टर, DG, रजिस्ट्रार समेत फैकल्टी, तलबा और वालिदैन शरीक हुए। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सब्र, मुस्तकिल मजाजी और जाती एहतसाब रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। तलबा सियासत से दूर भागने की बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासी लीडर का चुनाव करें। आज आपकी ग्रेजुएशन का दिन हम सबकी खुशियों का दिन है, न सिर्फ आपके लिए, आपके वालिदैन और ख़ानदान के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ पूरी कौम और इंसानियत के लिए ये बहुत खुशी का दिन है।
and I must appreciate and salute your hard work, resilience, patience and perseverance. वज़ीर बल्दियात मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि तलबा तालीम की अहमियत जानते हुए जिंदगी भर सीखने का अमल जारी रखें। Most of all, they depend on being accountable for one's thoughts, actions and deeds. But accountability in Pakistan has always been directed towards others. I believe this is one of the reasons this great nation has failed to realize its true potential. कॉन्वोकेशन में तलबा को 13 पैटर्न गोल्ड मेडल्स, 12 रेक्टर सिल्वर मेडल्स, 2 रेक्टर एकेडमिक एक्सीलेंस गोल्ड मेडल्स, 8 रिसर्च पब्लिकेशंस अवार्ड से नवाजा गया, 1 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, 7 यूनिवर्सिटी लेवल बेस्ट रिसर्चर अवार्ड्स, 7 स्कूल लेवल बेस्ट रिसर्चर अवार्ड्स और 8 रिसर्च पब्लिकेशंस अवार्ड भी दिए गए, जबकि 1 UMT बेस्ट टीचर अवार्ड के साथ 1 लाख नकद इनाम, 8 UMT बेहतरीन स्कूल टीचर अवार्ड्स के साथ 25,000 फीकस नकद भी बतौर इनाम दी गई। कैमरामैन वसीम नसार के हमरा इमरान यूनुस, City 42। इत्तिहाद टाउन फेज़ 2 हल्लों के इंटरचेंज रिंग रोड की बैलेटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मार्केटिंग, सेल्स पार्टनर्स और प्रॉपर्टी रियल स्टेट एडवाइज़र्स और अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में बराह रास्त कुरानंदाजी की गई। मुंतखब अफराद को 6 से 8 माह में प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा। इत्तिहाद टाउन फेज़ 2 हल्लों के इंटरचेंज रिंग रोड की बैलेटिंग तकरीब में नबील खोखर, चौधरी सुहेल मुनीर और फैसल खोखर बतौर स्पॉन्सर शरीक हुए। CEO इत्तिहाद ग्रुप शुजाउल्लाह खान का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कुरानंदाजी का अमल सारिफीन को तकसीम का मुनसिफाना और शफाफ तरीका है। हर 30 दिन के बाद कुरानंदाजी कराई जाएगी। फैसल खोखर ने कहा कि ये नया तामीराती मंसूबा ख़ानदानों को अपने लिए देर पा घरों की तामीर का मौका फ्राहम करेगा। नबील खोखर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तिहाद टाउन फेज़ 2 आला मेयार के मंसूबे की फ्राहमी के लिए पुरआज़म है। चौधरी रियल स्टेट, गैलेक्सी डेवलपर्स, प्रॉपर्टी पार्टनर्स, हुज़ैफा एसोसिएट, अल अज़ीज़ मार्केटिंग नेटवर्क, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज और दीगर को सीनियर्स से नवाजा गया। करची यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। करची यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिरकत की और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर आमिर एजाज और मेहमान खसूसी ने जीतने वालों में मेडल्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की। तकरीब में बच्चों में भी ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं। लेक सिटी मेन बुलेवर्ड में अंदरूने लाहौर की मशहूर आरिफ चटखारा की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि नई ब्रांच लेक सिटी, रायविंड, बहरिया टाउन और दीगर इलाकों को आरिफ चटखारा के खाबों की सहूलत फराहम करेगी। लेक सिटी मेन बुलेवार्ड में अंदरून लाहौर की मशहूर आरिफ चटखारा की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। आरिफ चटखारा के बानी व मालिक आरिफ भट्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेक सिटी डेवलपर्स सुल्तान गौहर, SGM लीजिंग इमरान भट्टी ने शिरकत की। डायरेक्टर सेल लेक सिटी अब्दुल रऊफ, SGM मार्केटिंग हसन महमूद, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड नदीम शरीक हुए। आरिफ भट्ट का कहना था, हमारी कोशिश होती है जो खुद खाएं वही दूसरों को खिलाएं। उम्मीद है लेक सिटी और मज़ाफात में हमारी नई ब्रांच को अच्छी पजीराई मिलेगी। तमाम सराउंडेड जो रायविंड और ख़ास तौर पर लेक सिटी की जो कम्युनिटी है, हम उनके लिए यहाँ पर अपनी ब्रांच का जो इफ्तिताह आज कर रहे हैं और इस उम्मीद से कर रहे हैं और इस यकीन से कर रहे हैं कि हमारा वो जो टेस्ट जो 3 दहाइयों से मुसलसल चलता आ रहा है, आपको वही रेसिपी यहाँ मिलेगी। SGM लीजिंग लेक सिटी इमरान भट्टी ने कहा, लेक सिटी में आरिफ चटखारा का इफ्तिताह लेक सिटी की जानिब से रिहायशियों के लिए तोहफा है। लेक सिटी में हमेशा हमने म्यारी खानों को तरजीह दी है, म्यारी शॉपिंग को तरजीह दी है। इसी सिलसिले में आज जिस तरह मल्टी नेशनल्स को लेके आए हैं, हमने अंदरूनी शहर से लेक सिटी के लिए, लेक सिटी के रिहायशियों के लिए एक आरिफ चटखारा के नाम से आज ओपनिंग की है, जो कि लेक सिटी के रिहायशियों के लिए एक तोहफा है। नई ब्रांच के इफ्तिताह के बाद खाबों के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में आरिफ चटखारा लेक सिटी में मजे मजे के खाने खाए। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ साजिद अली, सिटी 42 लाहौर। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स कार्निवल का इनेकाद किया गया। 12 साल से कम उम्र बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। 8 मुख्तलिफ स्कूल्स ने कार्निवल में हिस्सा लिया, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल GM स्कूल आतिफ मनीर समेत असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल, LGS, अलाइड स्कूल, केनाल व्यू और दी ओरियल स्कूल, दिल विजडम स्कूल, पंच स्कूल, जबकि अलबैरूनी इंटरनेशनल स्कूल के तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। 300 बच्चे स्पोर्ट्स कार्निवल का हिस्सा बने, जबकि फुटसॉल, टग ऑफ वार और एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, डॉज हॉल, आर्म रेसलिंग समेत मुख्तलिफ खेल भी खेले गए।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।